Good morning, students. In the last period, we have learned about foods. Do you know foods? Very good. Food is very important for our body. Food gives us energy to live. Okay. Now we learn about the first chapter of science. Name is where does it come from? Food, where does it come from? इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कौन बताएगा? Who gives the answer? हाँ, foods means भोजन. Then where does it come from? It is a question for you. Very good. यह कहाँ से आता है? भोजन कहाँ से आता है? Okay. We learn about the more information in this chapter. Okay, first we read the introduction. What did you eat at home today? है ना? It is again question for you. आज आपने अपने घर में क्या खाया था? कौन बताएगा? Who gives the answer? Very good. Our answer is different. Okay, some students gives the answer roti and chapati, roti and sabji. Then some students gives the answer pizza. Some students gives the answer. Very good. Our answer is different. Okay, then find out what your friend ate today. तो आपको ये भी पता करना है कि आपके दोस्त ने आज क्या खाना खाया था. वेरी गुड. आस्क योर फ्रेंड एंड लिसन द आंसर केयरफुली. डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे? क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था, खाना खाया था? नो, it is also different. Then we all eat different kinds of food at different time, isn't it? तो हम क्या करते हैं बेटा? अलग अलग समय पर, अलग अलग प्लेस पर हम अलग अलग खाना खाते हैं. ओके, it is very different. Then we learn the first point. It is food variety. What is the topic? Food variety. Then we learn the activity 1. Now first look the some dishes. We eat different types of foods we eat every day. Some students eat fried chicken, omelette, pizza, kebab, fish, steak, broth, toast, salad, dressing, pasta, rice, soup. Okay, many types of foods. Look the chart very carefully and learn the chart also. Then our state-wise famous foods also. Do you know? Do you know? Give the answer. Very good. Maharashtra is famous for misal pav. Then Punjab is makki di roti, सरसों दा साग. Then West Bengal कोशा मैंगसो. Then Gujarat ढोकला. Then Kashmir रोगन जोश. Then Tamil Nadu पोंगल. Assam पपया खार.
It is very different famous foods. State-wise also different foods famous in the in our country. Then look the first activity. First read it. Activity 1. Ask your friend in the school about the items they would be eating during a day. Listen carefully. Listen carefully. Ask your friend in the school about the items they would be eating during a day. इसका मतलब कौन बताएगा? आपको क्या पता करना है? आपको क्या पूछना है? वेरी गुड. आपको क्या पूछना है बेटा? हाँ, आपके दोस्त को पूछना है आप पूरे दिन में क्या क्या खाना खाते, कैसे खाते, कौन कौन से फूड लेते हैं. ओके, देन सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया. ओके, हमने पहले ही देखा है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग फेमस फूड होते हैं. जैसे हमने एग्जांपल में लिए थे महाराष्ट्र मिसळ पाव, पंजाब मक्की दी रोटी, लाइक दिस. ओके, तो आपको आपके जो अलग स्टेट से जो फ्रेंड्स हैं उनको भी पूछना है. लिस्ट ऑल आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन दी टेबल 1.1. तो टेबल 1.1 में आपको जो दिया हुआ है ना, अच्छे से आपको ये 2 कॉलम देखना है और इनमें कुछ इंफॉर्मेशन फिलअप करना है. व्हाट डू वी ईट. ओके, फर्स्ट कॉलम इज नेम ऑफ द स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स. आपके फ्रेंड्स के नाम लिखना है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रोहित, सेकेंड इज सचिन, थर्ड इज मोहित, लाइक दिस. देन सेकेंड कॉलम में आपको क्या लिखना है? फूड आइटम्स इटन इन अ डे. तो उसमें आप फूड आइटम्स लिख सकते हैं. लुक दिस टेबल 1.1 I prepared here. You also can write like this. Okay, first write the name Raju, Sonu, Mohit, Rohit, like this. Then second column write the foods. Look here. Raju fruits, Sonu Maggi, and Deepak roti dal, like this. Okay, write the table in your notebook and complete. Okay, then there seems to be so much variety in the food that we eat. तो हम जो खाना खाते उसमें क्या है? डिफरेंट है बेटा. ओके, मैनी डिफरेंस, मोर डिफरेंस एंड मच वैरायटी. व्हाट आर दिस फूड्स आइटम मेड ऑफ. तो ये फूड्स बनते कैसे, हम इसको बनाते कैसे, ये हमें कैसे पता चलेगा? डिस्कस योर मदर. आपकी मम्मी से डिस्कस करके आपको क्या करना है? पता करना है कि ये कैसे बनते हैं. ओके, देन थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम. तो आपके घर में जो राइस बनते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सोचना है. उसके बारे में आपको सोचना है और डिस्कस भी करना है, पूछना है. आपको भी पता ही होगा. आई थिंक डू यू नो वेरी वेल about the rice. Rice is very simple and very simple recipe also. सबसे पहले क्या करते हैं हम? We take raw rice, है ना. हमें क्या करना है? raw rice लेना है and boil it in water. तो उसको हमें किस में बॉयल करना है?
हाँ, पानी में उसको बॉईल करना है। जस्ट 2 मटेरियल, तो यहाँ पर हमें कितने मटेरियल चाहिए? जस्ट 2। कुछ लोग और एक मटेरियल यूज़ करते हैं इसमें, वो क्या है? व्हाट इज़ द नेम? सॉल्ट। वेरी गुड। और इंग्रेडिएंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंग्रेडिएंट? कौन बताएगा? वेरी गुड। इंग्रेडिएंट्स मीन्स क्या होता है? इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट मीन्स संगठन। क्या होता है? संगठन और मटेरियल्स, है ना। हम जो खाना बनाते हैं, वो जो फूड हम प्रिपेयर करते हैं, उस फूड को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन सभी का संगठन, उन सभी मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। तो बॉइल्ड राइस बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? हाँ, फर्स्ट इज रॉ राइस, सेकेंड इज salt, and third is water. Here only 2 materials show in the book, only rice and water. Okay. One on the other hand, some food ideas are made with many ingredients. तो यहाँ पर हमें 2-3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ी। हो सकता है कुछ फूड्स ऐसे हो कि उसमें हमें बहुत सारे मटेरियल लग रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मसाला, सॉल्ट, vegetables, many vegetables we mix and we made mix। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, सभी वेजिटेबल्स हम मिक्स कर कर एक फूड बनाते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं? मिक्स वेज। टू प्रिपेयर वेजिटेबल्स करी we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil and so on। तो हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारे मटेरियल हमें लगते हैं खाना बनाने के लिए। देखते हैं, we look the activity 2 now। choose some of the items you listed in table 1.1। तो 1.1 में आपने कुछ चीज़ें ली थी, आपके फ्रेंड्स के नाम लिखे थे, उन्होंने बनाया खाया हुआ फूड्स भी लिखा था, कौन कौन से फूड्स वो खाते हैं, है ना। तो कॉलम में हमने कुछ फूड्स के नेम भी लिखे थे। तो हमें वही फूड लेना है या फिर वो दूसरे भी ले सकते हैं। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट दैट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस। तो ये जो हम खाना खाते हैं, जो हमारा भोजन है, इसको बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है, उनकी भी हमें क्या करना है? एक लिस्ट बनाना है। ओके। बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। तो हमें ये प्रिपेयर कैसे करना पड़ेगा? घर जाकर हमारे कुछ फ्रेंड्स होंगे, उनसे पूछकर या फिर हमारे मम्मी से पूछकर, जो हमारे घर में खाना अच्छा बनाते हैं, जो कोई खाना बनाते हैं हमारे घर में, हम उनसे डिस्कस कर ये सब लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। लिस्ट देम इन टेबल 1.2। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देकर रखे। ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। तो इस लिस्ट में आपको क्या करना है? कुछ आइटम्स ऐड करना है। देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए ना। हाँ, वेरी गुड। फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। तो कुछ फूड आइटम्स का नाम लिखना है, और उनको बनाने के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल या फिर इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल हम इस कॉलम में लिखेंगे, यहाँ पर सेकेंड वाले कॉलम में, और फूड्स नेम लिखेंगे हम फर्स्ट वाले कॉलम में।
यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए। फर्स्ट इज़ रोटी एंड चपाती। रोटी और चपाती बनाने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत है? वी नीड आटा एंड वाटर। देन दाल। डू यू नो दाल? It is a food I like. I don't know you like or not. Okay, dal and their ingredients: pulses, water, salt, oil or ghee, spices, like this. Did you understand? Very good. Then look the next page. What do we find? तो हमने क्या फाइंड किया? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड्स आइटम। तो कुछ फूड्स आइटम ऐसे होते हैं कि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मटेरियल जो होता है वो क्या एक जैसा होता है, सेम होता है, कॉमन होता है। ओके, डिस्कस इन क्लास। आपको ये क्या करना है? क्लास में डिस्कस करना है। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये कहाँ से आते हैं, कहाँ से हमें मिलते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स। वेरी गुड। डिड यू अंडरस्टैंड बेटा? वेरी गुड। राइट दी टेबल 1.1 and 1.2 in your notebook and complete this in your notebook. It is your homework. Thank you friends. Have a nice day.